سب سے پہلے آپ کو بتائیں نیو جوڈیشل کمپلیکس ملتان مسائل کا گڑھ بن گیا، سہولتیں ہیں اور نہ ہی صفائی کا مناسب انتظام۔ وکلاء کہتے ہیں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود نیو جوڈیشل کمپلیکس بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نیو جوڈیشل کمپلیکس ملتان مسائلستان بن گیا۔ سینئر وکلاء کا کہنا تھا کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی، جبکہ صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں۔ تقریباً 300 سے زائد وکلاء پورے پنجاب سے، سندھ سے ڈیلی نیب کے کیسز میں اور مختلف کیسز میں متی تل پیش ہوتے ہیں، لیکن وہاں متی تل جس پہ اربوں روپے خرچ کیا گیا تھا مسائلستان بنا ہوا ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس میں بار روم، لائبریری اور کینٹین بنائی جائے۔ سینکڑوں وکلاء اور سائلین کو روزانہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ وہاں پر بار روم ہے، نہ ہی وہاں پر جو ہے کوئی کینٹین ہے، نہ ہی ان کی گاڑیوں کے لیے کوئی تحفظ ہے، اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ کچھ ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کہاں آ گئے ہیں۔ وکلاء ویلفیئر ایسوسی ایشن نے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں سینئر وکلاء نشاط احمد صدیقی، شیخ فیضان، اصغر علی لودھی، شکیلہ کوثر اور عتیق ملک موجود تھے۔ کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ مہار عمران نواز، ملتان۔ رحیم جان خان انتظامیہ کی نااہلی، سیوریج کے ناقص انتظامات، حاجی احمد کالونی کا مصروف چوک گٹروں کے پانی میں ڈوب گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وہ 2 سالوں سے سیوریج کے مسائل کا شکار ہے۔ رحیم یار خان میں انتظامیہ کے گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے بڑے بڑے دعوے ہوا ہو گئے۔ حاجی احمد کالونی کا مین چوک جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وہ 2 سالوں سے سیوریج مسائل کا شکار ہیں، تعفن کے باعث جینا مشکل ہو گیا۔ دیکھ لیں آپ سامنے آپ کے سب کچھ بہت ہی مشکل ہے۔ 1.5 سال ہو گیا تقریباً، کوئی بھی اس کا پانی تو ایسے رکا ہی رہتا ہے نا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں دی لیکن سنوائی نہ ہوئی، عملہ صرف برائے نام کام کرتا ہے۔ بہت سارے مشکل ہیں، بچے آتے ہیں اسکول سے چھوٹے، ادھر سے گزر کے جاتے ہیں، ان کے کپڑے خراب، صبح وقتی جاتے ہیں، پھر بچوں کو کپڑے خراب، کوئی واپس جا رہا ہے بچہ، کوئی کچھ ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے مستقل بنیادوں پہ سیوریج مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ملتان کے حلقہ این 157 میں سیوریج اسکیموں پہ کام جاری ہے۔ منصوبہ 17 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ تھیم آباد، باغ والی، کھوکھر والی بستی سمیت بڑی آبادی مستفید ہوگی۔ ملتان کے حلقہ این 157 کے باسیوں کی سنی گئی۔ 17 کروڑ کی لاگت سے سیوریج سکیموں پر کام جاری۔ منصوبہ مکمل ہونے سے بہاولپور بائی پاس کی ارد گرد کی آبادی مستفید ہوگی۔ سابق یو سی چیئرمین امجد بھٹی کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے سیوریج کے مسائل کا سامنا تھا۔ 3 فٹ چوڑی سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے، 10 بستیاں مستفید ہوں گی۔ الحمدللہ کہ یہ منصوبہ جو ہے ہمارا، یہ انشاءاللہ 2-3-4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات کام ہو رہا ہے۔ میں اس کا کریڈٹ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ درینہ مطالبہ پورا کرنے پر وہ ممبر قومی اسمبلی زین قریشی کے مشکور ہیں۔ کوشش تھی ہماری یہاں پہ سیوریج کا کام ہو جائے، بڑے مسائل تھے ہمارے پانی کے، اور وہ اللہ کی رحمت سے اب وہ حل ہو رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور زین قریشی کا میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے کو آ کے سراہا ہے۔ سیوریج لائن سے تہیم آباد، باغ والی، کھوکھرا والی بستی مستفید ہوں گی۔ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ 14 نمبر چنگی شریف پور ملتان کے باسیوں کو ملے گا سیوریج مسائل سے چھٹکارا۔ نئے ڈسپوزل اسٹیشن پہ کام تیزی سے جاری ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جاوید اختر نے منصوبے کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان اور ایم پی ندیم قریشی نے گھنٹہ گھر اور حسین گاہی بازار کا دورہ کیا۔ تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کو تجاوزات کے مستقل خاتمے کا الٹیمیٹم دیا۔ ملتان کے 14 نمبر چنگی شریف پورہ اور گرد و نواح کے سیوریج مسائل کا حل نکالنے کے لیے میگا منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ 14 نمبر چنگی پر نئے ڈسپوزیبل سینٹر پر کام کو تیز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر منصوبہ پر پہنچے اور کام کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت عوامی سہولت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ 3-4 یونین کونسلز ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہیں، جو لو لائنگ ایریاز جس کو ہم کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بارش ہو یا کوئی سیوریج کے ایشوز ہو جائیں تو یہاں کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری 117 ملین سے زائد کی اسکیم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کو بتایا گیا کہ منصوبہ
12 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल होगा। उस्मान बुज़दार साहब का स्पेशल फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर, नए एडीपी के ऊपर। ये हमारी नई एडीपी की स्कीम है। इसमें मंजूराबाद है, हमारा अंसार कॉलोनी है, शहीनाबाद, बेवापुर, ये सारे काफ़ी बड़ी आबादियाँ हैं। और इसमें कुछ जैसे कुछ पहले रेजिस्टेंस थी, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसमें काफ़ी महकमे की हेल्प की और ये सारा जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हुई है। मंसूबे का स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बुनियादों पर बनाया जा रहा है, जबकि डिस्पोजल के साथ पार्क भी बनाया जाएगा। मुल्तान की इस दरीना मुतालबे को पूरा करने के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग जवेद अख्तर महमूद ने आज खुद यहाँ पर चक्कर लगाया और इस 3 साला मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने की हदायत भी दी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्तान। मुल्तान में तजावुज़ात माफिया की अब खैर नहीं। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक। MP नदीम कुरैशी के हमरा हुसैन आगाही बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और MP नदीम कुरैशी ने घंटाघर और हुसैन आगाही बाजार का दौरा किया। ताजरों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे का अल्टीमेटम दे दिया। हुसैन आगाही और घंटाघर चौक में मुस्तकिल इंसदाद तजावुज़ात कैंप लगाने की भी हिदायत की गई। कुछ टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करेंगे। एक सीढ़ियों की निशानदेही आज की गई है, तो इंशाल्लाह अगले 48 आवर्स में उसको रिमूव करेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स इधर बने हुए हैं, उनको ठीक करेंगे। उम्मीद है कि ये हमारी जो एक मुश्तरका काविश है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे साथ है, अंजुमन ताजरान के दोस्त हमारे साथ हैं और मेरी टीम है, तो अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपको हुसैन आगाही एक बदला हुआ हुसैन आगाही नजर आएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, ताजर बरादरी तावन करे। MP नदीम कुरैशी का कहना था कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए वो इंसामिया के शाना बशाना खड़े हैं। ये चूंकि गुंजानाबाद है और आपको पता है कि ये मुल्तान का सेंट्रल पॉइंट है और मुल्तान साउथ पंजाब का सेंट्रल पॉइंट है, तो मेरी ख्वाहिश है कि जब यहाँ लोग शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से शॉपिंग के लिए आए तो उनको सहूलियात वही मिलनी चाहिए जो लाहौर के मॉडर्न बाजार में, जो इस्लामाबाद के मॉडर्न बाजार में। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद ताजरान ने रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात हटाने पर इत्तफाक किया और मुश्तरका लाहे अमल बनाने की यकीन दहानी करवा दी। कैमरामैन हारून के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में फयाज पार्क के इंतजामी को आखिरकार होश आ ही गया। शहर के वस्त में मौजूद फयाज पार्क की ताज़ा नौराइश और सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि 1 माह से सफाई की सूरत हाल खराब थी। मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया ख्वाबे गफलत से जाग गई। फयाज पार्क में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि शहर में सस्ती तफरी की वाहिद जगह फयाज पार्क है। गुज़िश्ता 1 माह से यहाँ सफाई की सूरत हाल खराब थी, मगर अब यहाँ इंतजामिया ने पार्क की तज़ीन और रैश का काम शुरू कर दिया है। पार्क के फुआरे भी चल पड़े हैं। पिछले मंथ जो गुजरे हैं बहुत खराब थी, लेकिन जो आने वाला ये मंथ स्टार्ट हो रहा है इसमें काफ़ी बेहतरी है। इंतजामिया ने काफ़ी खूबसूरती बढ़ाने में इजाफा किया है और शहरियों को भी चाहिए कि उनका साथ दें, गंदगी ना फैलाएं। शहरियों का कहना था कि बड़ी तादाद में फैमिली सैर के लिए पार्क में आती हैं। सफाई की सूरत हाल बेहतर होगी तो सबके लिए अच्छा होगा। पार्क में दरख्तों की कटाई भी शुरू कर दी गई है। इंतजामिया को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अब देख रहे हैं बहुत ज्यादा हालत बेहतर हो गई है। घास की कटाई वक्त पे हो रही है, पानी भी लग रहा है और बेंचेस की सफाई हो रही है, कूड़ा गिरगिट भी नहीं है। फैमिली के लिए अब बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। शहरियों का मुतालबा है कि मजीद झूले लगाए जाएं ताकि बच्चे भी पार्क में एंजॉय कर सकें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। वेलकम बैक। बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। तो जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 113 केसेस सामने आ चुके हैं। बहावलपुर से 48, मुल्तान से 24 और सरगोदा से कोरोना के 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डीजी खान से कोरोना के 13, रहीम यार खान से 7, बहावलनगर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में मुस्बत केसेस की बात की जाए तो शरह 5.3% तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 5वीं लहर स्कूलों तक पहुंच चुकी है। मुतादिद असातिज़ा भी मुतासिर, मुतालिका स्कूल बंद करके सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना की 5वीं लहर ने स्कूलों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटादू के टीचर ताहिरा बतूल में वायरस की तस्दीक पाई गई है। गर्ल्स हाई स्कूल चक 110 पीर रहीम यार खान की टीचर रजिया सुल्ताना भी मुतासिर हुई। उनकी उम्र 50 साल है। महकमा सेहत ने स्कूल्स को बंद करके सैंपलिंग शुरू कर दी है। उधर DHQ अस्पताल मियांवाली में डायलिसिस मशीनों की कमी, मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। MS अस्पताल का कहना था कि मशीनों की कमी बारे आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है। DHQ अस्पताल मियांवाली में डायलिसिस मशीनों की कमी से मरीज परेशान। MS DHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान का कहना था कि मशीनों की कमी बारे आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है।
मशीनों की कमी भी है डेफिनेटली। तो इस सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं, होपफुली आला काम की तरफ से इस पे डायरेक्शन पास कर दी जाएंगी, तो ये नई मशीनें आ जाएंगी तो इससे हमारे लोगों को और पेशेंट्स को खासकर इस चीज़ की जो कमी का सामना करना पड़ा है वो नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास जो है ना वर्कलोड ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा हैं और वक्त के साथ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं CKD के, जिसकी वजह से जो है ना हमें और मशीनों की भी ज़रूरत है। लवाहकीन ने डायलिसिस सेंटर के अमले के काम को सराहा। उनका कहना था कि मशीनों की कमी के बायस उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। ये कोई मसला को नहीं, असा मामू 9 साल को डायलिसिस करेंगे, मशीनों की कमी है, इंतजार करना पौंदे कोई टाइम वास्ते, लेकिन प्रॉब्लम तो कोई ऐसी को नहीं, अगर पेशेंट सर ठीक है, मशीनों की कमी तो काफ़ी ज़्यादा। गुजारिश है इतने मरीज जितने आने हैं ना उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं, लिहाजा मशीनों की कमी है, देर थी एमरजेंसी वालों वास्ते देर थी, लिहाजा सारी रिक्वेस्ट है सारी इस चीज़ के बारे हेल्प की वने। शहरियों ने DHQ अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की फौरी फरहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली में सेहत के मैदान से इनकलाबी खबर है। मियांवाली के निजी अस्पताल में पहली बार दिल की सर्जरी की गई है। डॉक्टर कैसर उबैद नियाजी का कहना है कि शहर में दिल के इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक मसूद कहते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी गुज़श्ता 6 माह से की जा रही थी। दिल के बाईपास के लिए मरीजों को रावलपिंडी और लाहौर भेजा जाता था, मगर अब मियांवाली में दिल के बाईपास ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मियांवाली में जो कि एक रिमोट एरिया समझा जाता है, जो कि सर्विसेज के लिहाज से बहुत छोटा इलाका समझा जाता है, लोग बैकवर्ड एरिया से कहते हैं, वहां पे हमने पहले एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी शुरू की और फिर अब बाईपास ऑपरेशन जैसा कामयाब ऑपरेशन हमने, जो कि दिल का फाइनल ऑपरेशन होता है, उसके बाद दिल की मर्ज इरेडिकेट करने में ये बहुत मुमिद मुआविन साबित होता है। डॉक्टर कैसर उबैद नियाजी का कहना था कि मियांवाली जैसे पसमानदा इलाके में दिल का ऑपरेशन बड़ी कामयाबी है। 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने कामयाब ऑपरेशन किया। कोशिश है कि दिल के मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दें। हमारे पास तकरीबन ये 8 से 10 डॉक्टर्स की और पूरे पैरामेडिक्स की एक टीम थी जिन्होंने आके ये ऑपरेशन किया और वो माशाल्लाह मरीज बहुत सेहतमंद है, फर्स्ट क्लास है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कॉस्ट का है, हम उबैद नूर हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड की फैसिलिटी रखता है। यहाँ पे हम उनके पैनल पे हैं और ये मरीज भी सेहत कार्ड पे हुआ है, इसका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज का कहना था कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। लवाहकीन ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनका इलाज हेल्थ कार्ड पर हुआ है। थोड़ा थोड़ा दर्द किए और सब अच्छी प्रेशन अच्छी और खाम अच्छी है और पूरा कोशिश की। हमारा चाचा है सर नजरगुल, इसका सर कामयाब ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, दिल का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर उबैद साहब का सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने यहाँ हमारे लिए टीम बुलाया स्पेशल। और हमारा चाचा का सर को निया जिंदगी अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन इस लोगों का हिम्मत है और मेहनत है। अस्पताल के मालिक डॉक्टर कैसर उबैद नियाजी का कहना था कि अब हर हफ्ते ऑपरेशन किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान के बासियों को मिलेंगी अब मजीद सेहत की सहूलियात। शेख ज़ायद अस्पताल में ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 मुकम्मल कर लिया गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने इफ्तिताह कर दिया। शेख ज़ायद अस्पताल में 30 बेड्स का नया ऑर्थोपेडिक वार्ड 2 मुकम्मल। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि नया यूनिट बनने से ऑपरेशन समेत तिब्बी सहूलियात की फराहमी बेहतर होगी। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट खास तौर पे मेन सफर था। इस सारी जो शिफ्टिंग प्लान है हमारा, सर्जिकल टावर की वजह से हमारे पास जो ऑलरेडी डिप्लीटेड स्पेस थी उसमें मजीद कमी हुई और मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। तो उसमें फिर हमने बादिल नाखास्ता जो पुरानी बिल्डिंग है उसके कुछ हिस्सों को दोबारा रेनोवेट करके काबिल इस्तेमाल बनाया। ऑर्थोपेडिक यूनिट जो है दिस इज द मेन सफर ऑफ द कोविड-19। जब से कोविड-19 आया 2019 से ऑनवर्ड्स वी आर बीइंग शिफ्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस। शेख ज़ायद अस्पताल में सर्जिकल टावर की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। इससे कबल नए वार्ड और यूनिट बनाकर तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में यूरिया खाद का बहरान जारी है। सिर्फ 2 बोरियां खाद मिलने पर काश्तकार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जश्न मनाया, ढोल की थाप पर झूमर भी डाली गई। बहावलपुर में भी यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। जैसे तैसे काश्तकार को कहीं से 2 बोरियां मिल गईं, जिस पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जश्न मनाया और ढोल की थाप पर झूमर भी डाली।
दस्तयाब हो चुकी है। बस हमारे ये करीबी हैं, इनको खाद मुनासिब रेट पे मिल गई है। हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। फूलों के हार, ढोल की थाप और भंगड़े किसी बड़ी खुशी पर डाले जाते हैं। काश्तकार के अमल से इनकी खुशी और खाद के बहरान की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खाद चल रही है और काफी किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और किसान का कोई खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है कि वो अब खाद सिर्फ 2 बोरियां मिलने पर किसानों के जश्न ने हुकूमती और इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स के लिए 3 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पहले रोज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ FSC एंड ऑर्डरी आफाक अहमद ने सीड सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। अपडेट करेंगे आपको। रहीम यार खान में सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स के लिए 3 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। पहले रोज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ FSC ऑर्डरी आफाक अहमद ने सीड सैम्पलिंग पर लेक्चर दिया है। रहीम यार खान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जारी है। मुल्क भर से 40 सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स शरीक हैं। पहले रोज DG FSC एंड RD आफाक अहमद ने सीड सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। एडवाइजर क्रॉप्स FAO डॉक्टर शकील अहमद खान, सीड सेक्टर स्पेशलिस्ट FAO मोहम्मद वहीद अनवर और डायरेक्टर FSC एंड RD नजर इकबाल ने भी सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स को आगाही दी। DG FSC एंड RD आफाक अहमद का कहना था कि सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स की तरबियती वर्कशॉप वक्त की अहम जरूरत है। 40 हमारे नए ऑफिसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हमारे जो मुल्क के मुख्तलिफ स्टेशन हैं वहाँ पे तैनात हैं। तो जब इनको 3 माह कब तैनात किया गया था तो उस वक्त भी हमने इनकी तरबियत का एहतमाम किया था। लेकिन चूंकि रहीम यार खान जो है वो सीड इंडस्ट्री का एक हब है, यहाँ कमोबेश 300 से 400 सीड कंपनियां और बहुत सारी फसलों के बीज यहाँ तैयार होते हैं। तरबियती वर्कशॉप से सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स की पेशा वराना महारत में निखार आएगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सैयद की चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद कमेटी के मेंबरान से खिताब किया। ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराती।